Good morning, class. So, we have discussed national income and its related aggregates topic, nominal and real GDP in some of facts of this topic in our Zoom meeting also, है ना? So now we are starting that nominal and real GDP in this lecture. Okay, what is nominal GDP and real GDP? So mostly in exam, the questions which will come from nominal and GDP, real GDP are just of numericals. But you have to first the concept of nominal and real GDP should be clear in your mind. So first I just want to tell you about nominal and real GDP. But before starting this topic, I just want to remind you some topics which we have done in our last lectures. Okay. So as you know that we have done in the last lecture, that is concept of national income. What is national income? What is domestic income? ठीक है, so we have done this. National income, it is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during the period of an accounting year. And domestic income क्या होता है? Domestic income is the sum total of factor incomes generated within the domestic territory. ठीक है ना, तो वो हमारी होती है domestic income. इसके बाद आई हैव टोल्ड यू दैट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक इनकम दे बोथ आर सेम, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, इसके बाद हम लोगों ने किया था ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी एंड एनडीपी. इफ वी हैव टू चेंज ग्रॉस to net, then we have to subtract depreciation from the gross value, because gross is the sum total of all the values. So that is depreciation is included in gross, but it will be deducted to for changing gross to net. Okay, but for the concept of domestic to national, if we have to change the domestic value to national value, we have to add net factor income from abroad to domestic income. ठीक है ना. After this, I have told you market price and factor cost. Market price, as you know that in market price, all taxes are included. Whenever we purchase a thing or whenever we purchase a product, so wherever there is a MRP is written, so after bracket like MRP is ₹100, so in bracket there is a written that इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी कि सारे टैक्स उसमें इंक्लूड हैं. सो फॉर चेंजिंग एमपी टू फैक्टर कॉज वी हैव टू डिडक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है ना, वी हैव टू माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस अ सब्सिडी प्लस. ठीक है, एनआईटी का अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू दी रहती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सो यू जस्ट हैव टू माइनस एनआईटी. बट इफ वैल्यू इज गिवन दैट इनडायरेक्ट टैक्स आर दीज एंड सब्सिडी आर दीज, सो व्हाट यू हैव टू डू, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, प्लस होगा, और सब्सिडी क्या होगी, माइनस होगी. ठीक है ना. सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर चेंजिंग मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. नाउ आवर today's topic is nominal and real GDP. What is nominal GDP and what is real GDP? nominal का मतलब होता है करंट, और real का मतलब होता है जो हम बेस ईयर का लेके चलते हैं. ठीक है, that is constant. So nominal GDP, it refers to GDP at current prices. What is this? It is the market value of goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year, as estimated using the current year price को जो हम लेके चलते हैं, that is your nominal GDP. ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉमिनल जीडीपी आ रहा है. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमें नेशनल का नहीं इंक्लूड करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, डोमेस्टिक का इंक्लूड करना है. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव टू डू real GDP. Actually real GDP and nominal GDP, both definitions are same, but the difference is that nominal is on current prices but real is at constant prices. So it refers to GDP at constant price. Okay, GDP at constant price, and it is the market value of final goods and services produced within the domestic country, or you can say domestic territory of a country. Okay, this is the concept of real GDP and nominal GDP. Now come to the next point, that so conversion of nominal GDP into real GDP. Actually the numerical questions will be based on conversion, or you have to calculate price index. So conversion of nominal GDP into real GDP.
रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। जीडीपी एट कांस्टेंट करंट प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉमिनल जीडीपी है ना, करंट प्राइस की क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी अगर निकालना हो तो दैट इज रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर आपको एक फॉर्मूला याद होता है, आपको जो मेन फॉर्मूला याद रखना है वो याद हमें रखना है प्राइस इंडेक्स का, कि प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका, जीडीपी डिफ्लेटर का। सो इफ़ यू हैव टू चेंज, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला रन रखना है, एक फॉर्मूले से ही आपके तीनों फॉर्मूले बनते हैं। सी, अगर आपको मैंने आप बोला प्राइस इंडेक्स, ठीक है, प्राइस इंडेक्स, और प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर। सो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी into 100. This is the formula of price index or GDP deflator. Okay, so if we have to find the value of nominal GDP, तो आप क्या करोगे, देखो इसी से ही आपका nominal GDP का फॉर्मूला बन जाएगा। सी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, PI इंटू रियल अपॉन 100, ये हो गया नॉमिनल GDP का। इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रियल GDP, सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू, रियल जीडीपी के लिए क्या होगा, देखो नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 अपॉन PI, ठीक है। दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। सो इफ क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ रियल जीडीपी इज 600, nominal GDP is 660, find GDP डिफ्लेटर, जिसको मैं प्राइस इंडेक्स भी बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, मैंने आपको बताया PI का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। सो नॉमिनल कितना है मेरे पास 660 अपॉन रियल कितना है 600 इंटू 100, कैंसिल, 6 1 जा 6 11, तो प्राइस इंडेक्स कितना आ गया मेरा 110। दिस इज माय आंसर। देखो आपको जो ये फॉर्मूला लगना है प्राइस इंडेक्स का, याद रखना ABCD के अकॉर्डिंग जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं तो ABCD के अकॉर्डिंग N पहले आएगा और R बाद में आएगा, ठीक है। तो नॉमिनल ऊपर और रियल नीचे और इंटू 100। इज इट क्लियर? ओके, सो दीज आर द न्यूमेरिकल्स विच यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में भी कि इतना ये दे रखा है, इतना ये है, तो आपको रियल जीडीपी निकालना है या नॉमिनल जीडीपी निकालना है। इसमें तो हम लोगों ने क्या निकाला है, हमने निकाला है इसमें प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर। अगर मैं आपको कह रही हूँ इफ क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड नॉमिनल जीडीपी, you have to find nominal GDP if real GDP is 240 and price index is equal to 120। सो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, ये नहीं देखना कि नियर नॉमिनल जीडीपी का क्या होता है, आप डायरेक्ट PI का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। PI कितना है 120 इज इक्वल टू नॉमिनल आपको नहीं पता, यू हैव टू कैलकुलेट इट, अपॉन रियल इज 240 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो नॉमिनल इज इक्वल टू 120 इंटू 24 अपॉन 10, सो इट विल बी 288 इज माई आंसर। इज इट क्लियर? आपने सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न रखना है, इफ़ यू हैव डन दिस फॉर्मूला सो यू हैव ऑलरेडी डन दिस फॉर्मूला ऑल्सो, री नॉमिनल एंड रियल, ठीक है ना। अगर आपको एक फॉर्मूला लर्न आता है तो आपको दोनों फॉर्मूले ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए, ऑटोमेटिकली याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ उसी में ही वैल्यू रखनी है और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द फॉर्मूलेज
and these are the numericals which we have to do on your this topic. Okay, now after this we have to start our new topic, that is GDP welfare. Okay, so okay, now our next topic is GDP and welfare, and this is the last topic from this chapter. Okay, so GDP and welfare. रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल. क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी यानी कि जो मैंने क्या लिया, कांस्टेंट प्राइस पे जो चल रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, वी आर कंसिडरिंग एज अ वेलफेयर फॉर द पीपल. वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन. वेलफेयर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वेलफेयर का मतलब है कि हर एक जो पर्सन है उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज का, तभी तो वेलफेयर होगा. अगर रिच लोगों के पास ज़्यादा है और पुअर के पास कम है, सो इज इट वेलफेयर? आंसर इज नो. ओके, सो इंक्रीज इन रियल जीडीपी मीन्स इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. जितना ज़्यादा हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी आउटपुट जो है इकोनॉमी में वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. Other things remaining constant, this means greater availability of goods per person, implying higher level of welfare, popularly known as social welfare. जो ज़्यादा लेवल है इन वेलफेयर का उसको हम ज़्यादातर क्या बोलेंगे, सोशल वेलफेयर बोलेंगे. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द प्लानर्स जो होते हैं या पॉलिटिशियंस जो होते हैं कंट्री में, वो हमेशा इम्फेसिस करते हैं रियल जीडी पे, कि जीडीपी हमारी बढ़े. ठीक है ना, जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी उतने ही ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा हमारी इकोनॉमी में. ठीक है, ग्रेटर, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी गुड्स एंड सर्विसेज की. जब ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज होंगे तो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी. सो आफ्टर दिस लिमिटेशंस ऑफ द जीडीपी वेलफेयर. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज, इसकी कुछ देखो, हमने इसके एडवांटेजेस तो देखी लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं. सो व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, अगर मैं कह रही हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो अगर अनइक्वल होती है, कि सब लोगों को इक्वल नहीं मिलती है, जीडीपी ग्रोथ फॉल्स टू रिफ्लेक्ट अ राइज इन सोशल वेलफेयर. तो इससे क्या हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ हमारी फेल हो जाएगी, उससे हमारा सोशल वेलफेयर नहीं बढ़ेगा. ठीक है ना. इंडिया इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन एट प्रेजेंट. आज की अगर हम बात करते हैं तो आज की उसमें क्या है, इंडिया ये सिचुएशन को फेस कर रहा है. वाइल पर कैपिटा जीडीपी इज राइजिंग, स्टारवेशन डेट्स आर हिटिंग द हेडलाइंस. आजकल जो हम न्यूज़ में देखने ज़्यादातर ये देखते हैं कि भूखमरी जो हो रही है, तो भूखमरी कैसे हुई, लोगों के पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, है ना. किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास है ही नहीं. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मतलब है वेलफेयर ओरिएंटेड. ठीक है, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड है. एग्जाम्पल, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स, डिफेंस गुड्स का, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इंक्रीज हो रहा है वेलफेयर ऑफ द पीपल में. ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर्स क्या कर रहा है, पीसफुल इन्वायरमेंट दे रहा है हमारी कंट्री को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है, जीडीपी हम कह सकते हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड है. ठीक है ना, इनडायरेक्टली कर रहा है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहा है. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज. देखो रूरल इकोनॉमीज़ में क्या है, बार्टर सिस्टम अभी भी है, कहीं कहीं पे अभी भी है. बार्टर सिस्टम क्या होता है, एज यू नो दैट बार्टर सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूज़ ऑफ मनी. जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, हम गुड्स एंड मनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम. ठीक है ना, जैसे मेरे पास वीट है, किसी और के पास राइस है, और मुझे क्या चाहिए, राइस चाहिए, दूसरे को वीट चाहिए, तो ये जो है हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, तो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ बार्टर सिस्टम. तो अभी भी कहीं कहीं एरिया में बार्टर सिस्टम है. सो प्रीपेमेंट्स फॉर फार्म लेबर आर ऑफन मेड इन काइंड रेदर देन इन कैश. जो फार्म लेबर है वो अभी भी जो है कैश के बदले किस में हो रही है, अभी भी मतलब ऐसे हो रही है कि भाई किसी से हमने काम करा, उसको गेहूं दे दिए या चावल दे दिए, ऐसे मतलब इस टाइप में हो रहा है. ठीक है ना, एज इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम. ये सारी ट्रांजेक्शन जो है अनरिकॉर्ड है, हमने उसको दिया. देखो जब हम पैसों में कुछ देते हैं तो वो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब कोई हम ऐसे दे रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अनरिकॉर्डेड रहती हैं. तो इससे क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन हो रहा है जीडीपी का, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कितनी हमारी इनकम हो रही है, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम हो रही है. ठीक है ना. आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नलिटीज. Okay, so next topic is externalities. I have not written here, but I am just explaining you what are externalities. एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है, देखो एक्सटर्नलिटीज़ जो हैं इसका कुछ गुड इम्पैक्ट भी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में और बैड इम्पैक्ट भी है. ठीक है, दे बोथ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तब होती है जैसे अगर सपोज मैं आपको कह रही हूँ एक मिस्टर एक्स है,
इसने क्या कर रखा है, मेंटेन्स अ ब्यूटीफुल गार्डन, इसका एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन इसने मेंटेन कर रखा है. ओके, नाउ एंड मिस्टर वाई जो इसका नेबर है, ये नेबर है इसका, जो इसके पड़ोस में रहता है, नेबर है मिस्टर वाई. इसने क्या कर रखा है, एंजॉयज इट, वो एंजॉय कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसका तो भाई देखो अच्छा खासा है, पेड़ वगैरह हैं वहाँ पे, क्या है, फूल्स हैं, उसको जो आता है तो वहाँ से ले रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है. सो बट ही डज नॉट पे फॉर इट. देखो इंजॉय तो कर रहा है, लेकिन क्या है, उससे मिस्टर वाई को तो फायदा हो रहा है, लेकिन क्या उसको पेमेंट कर रहा है उसके बदले? अगर उसके खेत में फूल्स वगैरह लग रहे हैं वो तोड़ रहा है, या फल लग रहे हैं वो तोड़ रहा है, फ्रूट्स वगैरह, तो इंजॉय कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है. ठीक है. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज अकर व्हेन फॉर एग्जाम्पल स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज. ये तो हमारा पॉजिटिव हुआ, इससे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये हमारा पॉजिटिव है. नेगेटिव क्या है, नेगेटिव तब होगा जब हम कह रहे हैं कि स्मोक जो फैक्ट्री से निकल रहा है उससे एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो रिवर में जा रहा है उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, सोशल वेलफेयर हमारी लॉस हो रही है. ठीक है ना. बट मोस्ट फार्मर डू नॉट पे द पेनल्टी. लेकिन बहुत से फार्मर, भाई सब कुछ जो हो रहा है ये किससे हो रहा है, एग्रीकल्चर वगैरह से, फैक्ट्रीज से हो रहा है, तो इसके लिए कोई पेनल्टी पे करता है फार्मर्स? नहीं करते. तो जीडीपी क्या हो रही है, फेल्स हो रही है टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन सोशल वेलफेयर. ठीक है. तो ये जो है इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स है हमारा वेलफेयर का, ये कुछ सीरियस लिमिटेशंस हैं जीडीपी की जो हमने पढ़ी है. ठीक है. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. After this, we will start our new topic, that is methods for calculating national income, and this chapter is based on numericals. इसमें हम numericals करेंगे. ठीक है. जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के. सो आपको ये जो नोट्स बनाने हैं इसी के बेसिस पे बनाने हैं. देखो दिस वन पेज. ठीक है. आई विल अपलोड PDF also. Here this chapter is finished. Now, so in this chapter we have studied about national income, normal residence of a country, domestic income, net factor income from abroad, gross and net concept of domestic product. ठीक है. market price and factor cost. Then we have done nominal GDP, GDP deflator and GDP welfare. ठीक है. So these are some topics which we have done under this chapter. Okay. Now this chapter is finished. Now we will start methods of calculating national income, and you have to do homework also. I will give you some numerical questions based on real GDP and nominal GDP. You have to do that. Okay. After this, we will start new chapter. Okay. And according to this NCERT questions, first question is based on GDP, यानी कि that is nominal GDP. You have to calculate price index, as I told you the formula for calculating price index. And second question is write down some of the limitations of using GDP as an index of welfare of a country. So you just have to write limitations of using GDP. So you don't need to write that questions also whenever you are writing this topic. So यहाँ पे आप एक क्वेश्चंस लिखेंगे. ठीक है. ये जो आप टॉपिक स्टार्ट करोगे यहाँ पे इसमें आप और करके एक क्वेश्चन लिखोगे यहाँ पे, और write down, this is the NCERT question, write down some of the limitations of using GDP as an index of welfare of the people. You just have to write this question also. ठीक है ना. This is the NCERT question. Okay. So thank you class. You just have to do this. Okay. Thank you.